Hey, what's up guys? Welcome back to my channel and welcome to this episode of Tech Talk. ये मेरे वीडियो की एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं पुराने, नए और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और वो है मेटावर्स। मेटावर्स हैज बीन देयर इन एग्जिस्टेंस सिंस लॉन्ग टाइम, बट ये रिसेंटली एक बज़वर्ड बन गया है जब इसे मार्क ज़करबर्ग ने अपने कंपनी का नाम फेसबुक से मेटा कर दिया एंड ही हैज आल्सो डिक्लेयर्ड प्लान्स फॉर हिज कंपनीज फ्यूचर रिलेटेड टू मेटावर्स। नाउ व्हाट इज मेटावर्स? टू अंडरस्टैंड लेट्स गो बैक टू द 90s एरा, जहाँ पे इंटरनेट काफी नई चीज थी और वो उस टाइम पे ऐसी दिखा करती थी। इसमें सिर्फ टेक्स्ट हुआ करता था और कुछ हाइपरलिंक्स जो आपको कनेक्ट करेंगे दूसरे पेजेस पे, जिसपे और टेक्स्ट और हाइपरलिंक्स हुआ करते थे। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया, नॉट इवन मल्टीमीडिया। उन दिनों में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ऐसे डिस्कस हुआ करता था जैसे कि अभी हम मेटावर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इट वाज दैट न्यू एंड दिस इंटरनेट वाज वेब 1.0। फिर आया वेब 2.0। It all started with the concept of multimedia, where we had user-generated content in the form of text, audio, video, etc. And this content was highly interactive. Web 2.0 इंटरनेट का करंट वर्जन है जो अभी हम यूज कर रहे हैं और काफी साल से यूज कर रहे हैं। Currently, we engage with each other online by means of social media, audio calls, video calls, text messages, etc. And Metaverse aims to take this experience to the next level. And Metaverse जो इंटरनेट यूज करेगा वो इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन होगा called Web 3.0. Metaverse will create online spaces where people can interact with each other in a multi-dimensional way. ये users अपने आप को इस content में completely immerse कर पाएंगे rather than just viewing it, and they will have a multi-sensory experience of this content. The content that we view now will become or feel more lifelike with the use of technologies like virtual reality and augmented reality. And users can create their own digital versions called avatar on different digital platforms and get immersed in the content. But आप सवाल पूछेंगे, इन्हीं को तो वीडियो गेम्स कहते हैं, नहीं? The answer is yes. It is just like video games like GTA, Warcraft, Roblox, Minecraft, where you can play as your own avatar and create new worlds. So the next question that you will ask is, then what difference Metaverse is going to make? The biggest difference is that on Web 2.0 जो इंटरनेट का करंट वर्जन है, इस इंटरनेट का कोई भी हिस्सा आप एक्सक्लूसिवली ओन नहीं कर सकते except for the domain name. Like google.com, facebook.com, ये जो domain names है, these can be exclusively owned only by a single person or a single company. Apart from that, इंटरनेट का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो आप exclusively own कर सकते हैं। But with this next version of internet or metaverse, you can buy digital assets and own them exclusively. इस metaverse में आप खरीद सकेंगे digital real estates, virtual clothing, virtual footwear and many other digital assets जिनको आप खरीद के उसी digital space में use कर सकेंगे। एंड कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स रजिस्टर किए हैं एज डिजिटल गुड्स विच कैन बी बॉट एंड यूज बाय अस इन दिस वर्चुअल स्पेस. You can even buy digital art online in the form of NFT or non-fungible token. In fact, many people have already paid millions to buy these digital art pieces and they cannot even be called masterpieces. इंटरनेट पे ऑलरेडी ऐसे वेबसाइट्स है जो वर्चुअल रियल एस्टेट या लैंड बेच रहे हैं which you can own exclusively. There is actually a website on the internet called earth2.io that has created a second virtual earth where you can buy and own digital real estate anywhere on the globe. These buyers intend to sell their digital assets जब भी टाइम राइट हो और प्राइसेस स्काईरॉकेट कर जाए, वैसे ही जैसे रियल लाइफ में होता है. These online marketplaces aim to be transparent with their users by utilizing technology like blockchain or cryptocurrency. Now अगला सवाल आप पूछेंगे, हम ऐसे ही कुछ पिक्सेल्स पे खर्चा क्यों करें जिनको हम फिजिकली फील भी नहीं कर सकते या यूज भी नहीं कर सकते? इसे अंडरस्टैंड करने के लिए बात करते हैं पैसे की. आज जो हम पैसे यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या? इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसकी ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं है until a group of people put their trust in it and unanimously agree that this piece of paper has some value. जैसे कि unanimously agree करने के बाद इस पेपर की वैल्यू 500 रुपीज है और वो हमेशा रहेगी. एंड देन यू कैन सिंपली यूज दैट पीस ऑफ पेपर टू बाय और एक्सचेंज गुड्स. सिमिलरली ये डिजिटल एसेट्स वैल्यू गेन करते हैं व्हेन अ बंच ऑफ पीपल पुट देयर ट्रस्ट इन इट एंड से दैट दिस डिजिटल एसेट हैज गॉट सम वैल्यू, रिजल्टिंग इन सम मोर पीपल जॉइनिंग देम, एंड ऐसे ही इस डिजिटल एसेट की वैल्यू बढ़ती जाती है. ये सेम चीज हुई है क्रिप्टो करेंसी के साथ, जहां पे कुछ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास नहीं रखा, बट देयर वर सम पीपल हु पुट देयर ट्रस्ट इन दिस कॉन्सेप्ट एंड नाउ मेनी पीपल हैव जॉइन्ड देम एंड दे आर बाइंग एंड सेलिंग क्रिप्टो करेंसीज इन मिलियंस एज वी स्पीक. द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स शोज अ लिमिटलेस पोटेंशियल. शायद यही रीजन है कि फेसबुक जैसे बड़े कंपनीज अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं from a media company to a metaverse company. These companies intend to make our online interactions more lifelike, especially इस कोविड पैंडेमिक के बाद, जहाँ पे ऑनलाइन इंटरेक्शंस काफी बढ़ गए हैं और हम में से काफी लोग
वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या स्कूलिंग फ्रॉम होम कर रहे हैं, द नेक्स्ट स्टेज वुड बी टू मेक दिस ऑनलाइन मीटिंग्स अ बेटर सेंसरी एक्सपीरियंस than just video or audio calls, where you will feel like you're actually sitting with these persons in a virtual room face to face and you can see them in their entirety rather than just a talking head in the video. माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी ने भी VR प्रोडक्ट डेवलप किया है कॉल्ड HoloLens, जिसका रिसेंटली मुझे एक डेमो देखने मिला जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव एक वर्चुअल मशीन पार्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, जस्ट लाइक हाउ द कैरेक्टर टोनी स्टार्क डज इन द मूवी आयरन मैन. इट वाज अमेजिंग. हम काफी सारे वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेल चुके हैं जिसमें हम VR ग्लासेस लगा के वी गेट fully immersed in the game and we lose touch with the reality outside. और हम पोकेमॉन गो जैसे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वाले गेम्स भी खेल चुके हैं जहां पे वी गेट पार्शियली इमर्स्ड इन द गेम बट वी आर स्टिल अवेयर ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड अस. काफी सारे गेमिंग कंपनीज ने भी मेटावर्स के टुवर्ड स्टेप लेना शुरू कर दिया है. फॉर एग्जांपल फोर्टनाइट गेमिंग कंपनी ने एक वर्चुअल लाइव कॉन्सर्ट अरेंज किया था विद पॉप स्टार आरियाना ग्रांडे और इस कॉन्सर्ट को लाखों लोगों ने वर्चुअली अटेंड किया था. देन और एक एग्जांपल है कार कंपनी BMW का. इन्होंने अपनी एक नई कार वर्चुअली लॉन्च की रॉकेट लीग नाम के गेम के अंदर. इन सारे एग्जांपल्स को देख के ये लगता है कि हॉलीवुड मूवीज जैसे द मैट्रिक्स, अवतार, रेडी प्लेयर वन, इनमें जो फ्यूचर दिखाया गया है इट डजेंट लुक लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम एनीमोर बट इट इज सून टू बिकम अ रियलिटी. बट एक सवाल रह जाता है, क्या हम लोग इस मेटावर्स को रेडीली अपने फ्यूचर में एक्सेप्ट करेंगे? क्या हम अपने डेली इंटरेक्शंस में वो ह्यूमन टच खो देंगे? वुड वी लूज द सेंस ऑफ रियलिटी कंप्लीटली एंड वुड यू टेक द रेड पिल और द ब्लू पिल? मेरा मानना ये है कि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं एंड हमें इस टेक्नोलॉजी में गोता लगाते समय थोड़ा संभल के रहना होगा. इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू विल रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी विदाउट डिसमिसिंग इट कंप्लीटली एंड मेंटेनिंग द सेंस ऑफ व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट. सो गाइज दैट वाज टुडेज वीडियो. मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपको इस मेटावर्स के बारे में क्या लगता है, वेदर इट इज अ ब्लेसिंग और अ बून. And if you like this video, do give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. And I'll see you again in my next video. My name is Kunal and you are watching Tech Hive.